Hi student, in this video I am going to do quadratic equation exercise 4.2. Exercise 4.2, question number 1. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. So first one is x square minus 3x minus 10 equals to 0. So first we'll split the middle term. For that we need two numbers such that their product is equal to a into c and sum is equal to b. Now what is a? Coefficient of x square. What is b? Coefficient of x minus 3. C is constant. Product is a into c. Product what we take? A into c. So 1 into minus 10 equals to minus 10 and sum is b. So sum is minus 3. So we need to find two numbers whose product is minus 10 and when we add them it is minus 3. Now product is in negative sign, therefore one number is negative, other number is positive, because when one of the number is negative then only product comes negative. Now and sum is minus 3 means greater number is negative, because when we add a negative number and positive number, basically we subtract them and bigger number sign, as sum has minus sign means bigger number is negative. Now we'll find two number whose product is minus 10. So let's check. Minus 10 means 2 into 5 we can take. 2 into 5 is 10 and if we take 5 as negative, then 2 plus minus 5 will come minus 3. So sum will come minus 3, product is minus 10. So rewrite this and middle term will write in the form of two numbers which we found. So plus 2x minus 5x minus 10. So basically हम क्वेश्चन नहीं चेंज कर रहे हैं, हम बस उसको रीराइट कर रहे हैं इन सच अ वे दैट मिडल टर्म को हम ऐसे दो नंबर की टर्म्स में लिख रहे हैं सो दैट देयर सम is b, because we need sum this only, we can't change question, and their product comes to be a into c, that is minus 10. Okay, and if you see here x square plus 2x minus 5x is same 3 minus 3x, और ये minus 10 वैसा का वैसे ही है. ओके, सो हमने सिर्फ रीराइट किया है. नाउ विल फाइंड कॉमन. नाउ x square plus 2x कॉमन इज x. सो x into x square अंदर x बचेगा, 2 into x अंदर 2 बचेगा बिकॉज वी आर टेकिंग आउट x. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है वही ब्रैकेट आएगी जब तुम कॉमन लोगे. तो यहाँ पे x है, पहला टर्म x है ब्रैकेट के अंदर, मतलब कॉमन क्या आएगा? -5. ओके, सो अंदर बचेगा सेम यही x प्लस 2. चेक भी कर लो. -5 इंटू एक्स इज -5x, -5 इंटू 2 इज -10. ओके, नाउ इन दोनों, अब ये एक पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, इसमें कॉमन आ जाएगा x प्लस 2. क्या बचा अभी? x माइनस 5. सो टेक x प्लस 2 कॉमन. अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? x माइनस 5 इज 0. So this into this is 0 means either this is 0 or this is 0. Okay, तो यहाँ से हमें दो रूट्स मिल जाएंगे, दो रूट, और सोल्यूशन विल गेट x माइनस 5 इज either this is 0 or x minus 5 is 0. So from there we'll get x is 2 or x is 5. -5 को उधर ले जाएंगे, +5 हो जाएगा. Here x is -2. When you take +2 that side, it will become -2. So roots of this equation are -2 and 5. The second one is 2x square plus x minus 6 equals to 0. So a is 2, coefficient of x square, b is 1, c is -6. So product we take a into c and sum is b. So what is product? A into c means 2 into -6, that is -12, and sum is b, that is 1. Now find two numbers, product is -12 and sum is 1. Again product is negative means one number is negative, other number is positive. So हमें 1 चाहिए. So 2 into 6 will not get, because one number positive, other number negative. 6 minus 2 is 4, will not get 1 sum. So 3 into 4 is 3 into 4. And sum is positive, take smaller number negative. So -3 into 4 is 12. -3 plus 4
So one number negative, other number positive, we subtract, bigger number sign will come 1. Okay, so two numbers are minus 3 and 4. So rewrite this, splitting the middle term. Split the middle term. Instead of x, write minus 3x plus 4x. So all this we do just to find how to rewrite this middle term so that we can factorize it. Okay, now take common. So here we'll get x common because 3 will not go by 2, so only x will come out. So 2x is left inside and minus 3. Okay, here what is there? First term, same bracket will come that side also when you take common. So here it is 2x, so means what will come out from this? 2. So plus 2. Inside same thing, 2x minus 3. You can check 2 into 2. 2 into 2x is 4x. 2 into minus 3 is minus 6. Now these two are common. 2x minus 3. What is left inside? X plus 2. So 2x minus 3 take common. What is left inside? X plus 2 is 0. So either 2x minus 3 is 0 or x plus 2 is 0. So 2x is 3, x is 3 by 2, and here we'll get x equals to minus 2. When you take 2 that side, minus. So two zeros are 3 by 2 and minus 2. Now third one is root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equals to 0. Again a is root 2, b is 7, c is 5 root 2. Product is a into c. So a is root 2, c is 5 root 2. Now how to multiply? 5, and this is root 2 into root 2. Root 2 into root 2 is 2. Okay. So 5 into 2, 10. So product is 10. Sum क्या होगा? b. Sum हो गया 7. Okay. Product is 10. Sum both positive. Product is positive as well as sum is positive. If product and sum both are positive means both the numbers are positive. So find two numbers जिसको मल्टीप्लाई करके हमें 10 मिले और ऐड करके 7 मिले. तो ये इजी है. 2 into 5, 2 5s are 10 and 2 plus 5 7. Rewrite this. Root 2x square plus 2x 7x को हम क्या लिखेंगे? 2x plus 5x. हम कुछ क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हैं, बस उसको मॉडिफाई करके लिख रहे हैं मिडिल टर्म को. 7x, दिस इज ऑल्सो 7x. ओके, सो ये दो नंबर फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट और सम ऐसे करके ढूंढते हैं. नाउ इसमें से कॉमन लेंगे. नाउ रूट 2x स्क्वायर एंड दिस इज 2. व्हाट 2 इक्वल्स टू रूट 2 इंटू रूट 2. तो वो ध्यान रखो, जब कॉमन लेंगे कॉमन अच्छे से लेना है. 2 इज रूट 2 इंटू रूट 2. कहीं पे भी गलत हो गया तो फिर आगे पूरा रॉन्ग हो जाएगा. नाउ x तो कॉमन है ही, और 2 क्या होता है? रूट 2 इंटू रूट 2. सो एक रूट 2 उसमें से आ जाएगा बाहर, एक रूट 2 बाहर आ जाएगा 2 में से. तो अंदर क्या बचा? x. रूट 2x स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर बचा x. और यहाँ 2x में x बाहर आ गया और 2 इज़ वॉट? रूट 2 इंटू रूट 2. एक रूट 2 बाहर आ गया तो अंदर बचा रूट 2. ओके, रूट 2x इंटू एक्स इज रूट 2x स्क्वायर. रूट 2x इंटू रूट 2 इज 2x. यहाँ से क्या कॉमन आएगा? अंदर x है मतलब यहाँ से 5 कॉमन आएगा. यही सेम ब्रैकेट उधर आएगी. ओके, 5 इंटू एक्स और यहाँ पे x है तो मतलब इसमें से 5 बाहर आ जाएगा. अब ये कॉमन ले लो, x प्लस रूट 2. सो वी हैव x प्लस रूट 2. अंदर बचेगा रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. आइदर दिस इज 0 और दैट इज 0. ये 0 है या फिर रूट 2x प्लस 5 0 के बराबर है. एंड x इज रूट माइनस रूट 2 एंड रूट 2x इज माइनस 5. सो x इज माइनस 5 बाई रूट 2. सो टू जीरोज आर माइनस रूट 2 एंड माइनस 5 बाई रूट 2. यूजली हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं तो इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लो. सो माइनस 5 रूट 2 बाई 2 इज़ द अदर रूट. ओके, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 9th स्टैंडर्ड में क्या था? तो रूट 2 इंटू रूट 2 विल बिकम 2. सो दिस इज 5 रूट 2 बाई 2. सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. So this is question number 3.
Now question number 4, we have 2x square minus x plus 1 by 8 equals to 0. So पहला काम है कि ये जो फ्रैक्शन है उसको सही कर लो पहले. Now this is 1 by 8, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है. Okay, so we'll first make denominator same. So multiply this term, numerator and denominator, by 8, and this also numerator and denominator by 8. So this into 8 into 8, this into 8 into 8. So 8 to the 16x square minus 8x plus 1. ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? फ्रैक्शन हटाने के लिए. ओके, नहीं तो सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा. इक्वल्स टू 0. फिर 8 को उधर ले जाके 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो ये हमारा फ्रैक्शन हट गया. सो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ a is 16, b is minus 8 and c is 1. अब हमारे पास प्रोडक्ट है a इंटू सी, दैट इज 16 इंटू 1 16, एंड सम इज b विच इज़ माइनस 8. अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, मतलब दोनों नंबर नेगेटिव हैं, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल. अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है. और जब हम उसको ऐड करते हैं दो नेगेटिव नंबर को, तो क्या करना रहता है? दो नेगेटिव नंबर को ऐड करना मीन्स उन दोनों को ऐड करके उसके आगे माइनस साइन लगाते हैं. ओके, so when product is positive and sum is negative, product of two number is positive and sum of those two number is negative, means both the numbers are negative numbers. So 16 का देख लेते हैं, 4 into 4. So 4 into 4 तो हम minus 4 into minus 4, 4 4 is 16, minus minus plus multiply करके ये आएगा. And when you add, so minus 4 plus minus 4, we add and put minus sign. 4 plus 4 8 with minus sign. Okay, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है. सो 16x स्क्वायर इंस्टेड ऑफ माइनस 8 विल राइट माइनस 4x माइनस 4x. तो इसमें ध्यान रखो, हम कभी भी क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए. जब भी स्प्लिट करो मिडिल टर्म को, एक बार चेक कर लो तुम्हारा क्वेश्चन सेम है कि नहीं. क्वेश्चन क्या था? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1. ये 8x आ रहा है, माइनस 8x. ओके, नाउ टेक कॉमन. इसमें क्या आएगा? 16 एंड 4. 16 4 के टेबल में आता है तो 4 कॉमन आएगा, और x स्क्वायर एंड x तो x कॉमन आएगा. 4 बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा? 4x. 4x बाहर है तो अंदर क्या बचा? माइनस 1. यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, 4x बाहर है यहाँ कुछ नहीं रखते, बस 4x इंटू 4x करके नेक्स्ट में चले जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग. जब तुमने 4x यहाँ से बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा? 4x के साथ अभी क्या 4x इंटू 1 लिख सकते हैं ना. 4x इंटू 1, 4x इंटू 1 इज़ 4x ओनली. तो वहाँ क्या बचा? वहाँ 1 बचेगा. ओके, तो जब भी हम ऐसे निकालते हैं बाहर, यहाँ ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं. जैसे 16x स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन लेना है, 4x बराबर वो कॉमन लेते हैं और अंदर क्या लिखेंगे? यहाँ पे 4x, यहाँ कुछ नहीं बचा, बस यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग. यहाँ पे बचेगा माइनस, ये 4x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा? 1. 4x इंटू 1 इज़ 4x, सो ये 1 बचेगा यहाँ पे. ओके, नाउ वी वॉन्ट 4x कॉम अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस 4x है और यहाँ पे माइनस 4x है. टेक माइनस 1 कॉमन. माइनस 1 इंटू 4x इज माइनस 4x. अंदर सेम चीज़ आनी चाहिए जो यहाँ पर है. अब माइनस 1 बाहर लेंगे तो ये 4x आ जाएगा अंदर, और ये प्लस 1 है, प्लस 1 है, और मैंने बाहर माइनस लिया है. जब मैं मल्टीप्लाई करूँ मुझे वापस प्लस मिलना चाहिए, तो ये इसलिए माइनस 1 लिखेंगे, बिकॉज माइनस 1 इंटू माइनस 1 मुझे प्लस मिलेगा. माइनस 1 इंटू माइनस 4x माइनस 4x मिलेगा. 4x इंटू 4x 16x स्क्वायर. 4x इंटू माइनस 1 विल गिव यू माइनस 4x. इसको इस टर्म को हटा ही दिया तो ये माइनस 4x कभी भी नहीं मिलेगा. करेक्ट. तो ये गलती करते हैं कुछ बच्चे. तो तुमने अगर ये पूरी टर्म ही कॉमन आ रही है दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा. सो माइनस 1. नाउ टेक कॉमन. सो यू विल गेट 4x minus 1 common. What is left inside? 4x minus 1. Either this is 0 or this is 0. So दोनों zeros तुम्हारी सेम ही आएंगी. So 4x is 1. So x is 1 by 4. Similarly here also 4x is 1. So x is 1 by 4. So they have equal root. This equation has equal roots. Both the roots are 1 by 4 and 1 by 4.
Now next question, fifth part. Question number 1, fifth part. 100x square minus 20x plus 1 equals to 0. Now a is 100, b is minus 20, c is 1. So product is a into c, that is 100 into 100. Sum is b, which is minus 20. Now sum is negative, product is positive, means both the number are negative. Both the number negative, then only you will get product positive and sum negative. Okay, so both the numbers are negative. So we'll take 10 into 10. So minus 10 into minus 10 is plus 100. Minus 10 plus minus 10 is minus 20. So if product is positive and sum is negative, means both numbers are negative. Now rewrite this 100x square. Instead of 20x, we'll write minus 10x minus 10x. Okay, so we are not changing question. Minus 10x minus 10x same as minus 20x. Okay, so common लेंगे तो इसमें से common आएगा 100x square and minus 10x. So एक यहाँ x square है, यहाँ x है, minimum is x, so x बाहर आएगा. यहाँ 100 है, ये 10 है. 100 is 10 into 10 और यहाँ 10 है, तो 10x 10 बाहर आएगा. Common is 10. So 10x into what will give you 100? 10 into 10 will give you 100. X into x square will give you 100x square. So देखो 10x into 10x कितना होगा? 10 into 10 100, x into x x square. So common लेते समय basically ध्यान रखना है. अब 10x पूरा बाहर आ गया तो उसकी जगह क्या बचेगा? 1. ये ध्यान रखो, यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं. 1 की बजाय वो हटा ही देते हैं उसको. ना अभी हमारे पास 10x अंदर 10x है, 10x minus 1, और ये 10 यहाँ पे minus 10 है, तो मतलब minus 1 कॉमन आएगा, क्योंकि 10x तो हमें अंदर ही चाहिए. ओके, minus 1 into 10x is minus 10x, minus 1 into minus 1 is plus 1. ध्यान रखो कॉमन निकालते समय जो इस ब्रैकेट में आता है पहला वाला ठीक से निकालो, जो इधर आएगा वही यहाँ पे आएगा, तो इसलिए तुम्हें दूसरा ईजी होता है. सो यहाँ से हमारा -1 आ जाएगा, क्योंकि अंदर हमें प्लस 10x चाहिए. करेक्ट, तो अंदर बचेगा 10x, और ये +1 क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर निकाला है. वापस ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होके ये प्लस होगा, तो हमने कुछ ये कॉमन आ जाएगा. 10x minus 1 इज कॉमन, अंदर बचेगा 10x minus 1. सो इसमें भी सेम ज़ीरोज़ आएंगे. दिस इज़ 0 और so from there you will get x as 1 by 10. Here also we'll get x as 1 by 10. So we have two roots, 1 by 10 and 1 by 10. Question number 2, solve problems given in the example 1. So पहला वाला है John and Jivanti together have 45 marble. Both of them lost 5 marble each, and the product of number of marbles they have is 124. We would like to find how many marbles they had to start with. Okay. So John and Jivanti, they have total 45 marbles. So let John has x marbles. Okay. So Jivanti के पास कितना होगा? टोटल 45 है. अगर जॉन के पास x है तो रिमेनिंग बचे हुए मार्बल जिवंती के पास होंगे. तो रिमेनिंग बचे हुए मार्बल कितने हैं? 45 में से x माइनस कर दो, दैट इज़ रिमेनिंग मार्बल्स. सो दैट इज़ विद जीवंती. देन द नंबर ऑफ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल. दोनों के 5 मार्बल गुम हो गए. तो आफ्टर लूजिंग, ये लिख लिया करो आफ्टर लूज, जो भी दिया रहता है कंडीशन, क्योंकि वो इजी होता है फिर. अभी जॉन के पास कितने मार्बल हैं? x minus 5, और जीवंती के पास 45 minus x minus 5, क्योंकि अभी दोनों ने 5 घुमा दिए. सो 45 और 5 को सॉल्व कर सकते हो, उसको सॉल्व कर लो. 45 minus 5 इज़ 40, 40 minus x. जॉन के पास x minus 5 मार्बल है, जीवंती के पास 40 minus x मार्बल है. इन दोनों का मल्टीपल गिवन है. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज़ 124. सो दिस इंटू दिस इज़ 124. इसलिए कभी भी दिया रहता है 5 कम हो गए या 6 सम नंबर्स बढ़ गए, उसको वापस लिख लो तो तुम्हारा मिस्टेक नहीं होगा. सो नाउ आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल, जॉन हैज़ x minus 5. आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल, जीवंती हैज़ 40 minus x marbles.
दोनों को मल्टीप्लाई करके व्हाट इज गिवन आंसर इज 124. मल्टीप्लाई करो x इंटू 40, x इंटू 40 माइनस एक्स. इस ब्रैकेट की हर एक टर्म दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी. नाउ दिस इज -5 इंटू ये पूरी ब्रैकेट. तो यहाँ साइन का ध्यान रखो. x इंटू 40 इज 40x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर. -5 इंटू 40, एक नंबर पॉजिटिव अदर नंबर नेगेटिव. व्हेन वी मल्टीप्लाई आंसर इज नेगेटिव. 5 4 20, दोनों नेगेटिव. व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस इज प्लस. 5 इंटू एक्स 5x. Okay, now we have 40x minus x square. Bring 124 this side, so minus 200 plus 5x minus 124 is 0. अब लाइक टर्म सॉल्व कर लेंगे. 40x plus 5x is 45x माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस 200 माइनस 124, जब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको हमें ऐड करना है. तो -200 माइनस 124 इज ऐड देम एंड पुट माइनस साइन. दोनों नेगेटिव, हम उसको ऐड करते हैं और माइनस साइन लगाते हैं. ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखो, कभी भी एक्स स्क्वायर है ना, उसको नेगेटिव मत रखो उसका कोएफिशिएंट. इसलिए इन सारी टर्म्स को हम उस तरफ ले जाएंगे. जब हम सारी टर्म्स को उस तरफ ले जाएंगे सो 45x उधर जाके -45 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर को अगर हम उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा. सो मैं सबको ऐसे ही इन सब का बेसिकली मैं साइन चेंज कर रही हूँ. ओके, इक्वल्स टू 0 है. सो इफ़ यू टेक एवरीथिंग दैट साइड कैसा होगा? 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. 45x उधर जाके -45x हो जाएगा. -324 उधर जाके +324 हो जाएगा. ओके, बस बेसिकली मैं इसलिए कर रही हूँ, मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए. ओके, कन्फ्यूजन नहीं होता है, कैलकुलेशन ईजी होती है. इसको रीराइट कर लो. इक्वल टू 0 इक्वल टू है या इक्वल टू 0 इज सेम थिंग ना. सो राइट इट. ओके, तो हमेशा इसको रीअरेंज कर लो. एक्स स्क्वायर सबसे पहले रहना चाहिए और इसको पॉजिटिव रहना है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, इसलिए मैंने सब कुछ उस तरफ ले गई, सबका साइन चेंज कर दिया उधर ले जाकर. और फिर वापस इक्वल टू 0 इक्वल्स टू है ना, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली तुम सबका साइन चेंज करके इक्वल टू 0 लिख सकते हो. ओके, सो ये कैसे आया इसलिए मैंने दिखा दिया. नाउ a इज़ 1, b इज़ -45 एंड c इज़ 324. प्रोडक्ट इज़ a इंटू c, दैट इज़ 1 इंटू 324, दैट इज़ 324 एंड सम इज़ b -45. नाउ हम ऐसे दो नंबर फाइंड करते हैं जिसका प्रोडक्ट +324 है और सम -45 है. तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे. दो नंबर नेगेटिव होंगे तभी उनको मल्टीप्लाई करने से प्लस में आंसर आएगा और ऐड करने से माइनस में आंसर आएगा. तो ये चीज़, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तुम्हारे. नाउ 324 को हम विल फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट. ट्रायल एंड एरर से फाइंड करेंगे दो नंबर्स. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 3 7s are 27. हमें क्या चाहिए? दोनों नंबर को ऐड करके 45 आना चाहिए. करेक्ट. सो 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 plus 27 will not be 45. और करते हैं. 3 9s are 27. ओके, अब एक बार और चेक कर लेते हैं. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 plus 9 is 45. So मिल गया हमें नंबर 36 plus 9. So -36 minus 9 is the number. -36 minus 9 is -45 and इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें +324 मिलेगा. रीअरेंज इट. एक्स स्क्वायर -36x minus 9x. So हम इसको रीराइट करेंगे by splitting the middle term. Now फाइंड टेक कॉमन. तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 36x है, x ही आएगा कॉमन. अंदर क्या बचा? x -36. ओके, हमें अंदर x चाहिए बिकॉज यही आएगा इधर की ब्रैकेट में भी. x आएगा मतलब -9 कॉमन है. -9 कॉमन, इधर बचा x -36 इक्वल्स टू 0. यही सेम ब्रैकेट इधर आएगा. ठीक है. सो x माइनस तुमको चाहिए तो चेक भी कर सकते हो. -9 इंटू -36 इज 324. विल गेट सेम आंसर. अब ये दो कॉमन ले लो. सो फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट पेयर का कॉमन ठीक से निकालो, फिर दूसरा पेयर फास्ट हो जाएगा. ओके, नाउ x इज
x minus 36 is 0 और x minus 9 is 0. सो वहाँ से हमें मिलेगा x is 36 और x is 9. ओके, तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 9 होगा. अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 36. क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि जॉन हैज़ मोर मार्बल देन जीवंती, ऐसा कुछ नहीं दिया, बस उनका सम दिया है. तो अगर जॉन के पास बोथ द आंसर आर पॉसिबल बिकॉज 36 बोथ आर पॉजिटिव एंड लेस देन 45, सो बोथ आंसर्स आर पॉसिबल. सो इफ जॉन हैज़ 36 marble then Jivanti will have 9 marbles, and if John has 9 marble then Jivanti will have 36 marble. 45 minus 9. Okay, so example 1, second question. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On particular day the cost of production was 750. We would like to find out number of toys produced on that day. So let number of toys produced, let number of toys produced in a day, एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस होते हैं, let that be x. ठीक है, then what they have given is the cost of production of each toy, एक टॉय का cost of one toy, cost of production of one toy is 55 minus number of toys जो उस दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो दिस मेनी रुपीज़ आर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ one toy. Then what is given? On that day the total cost of production was 750. Okay, अगर सपोज 10 टॉयज़ है, जस्ट फॉर एग्जांपल 10 टॉयज़ हैं और हर एक टॉय का कॉस्ट है ₹20. सपोज 10 टॉयज़ हैं और हर एक टॉय का कॉस्ट है, एक टॉय का कॉस्ट है ₹20. अगर तुम्हें 10 के 10 खरीदने हैं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे दुकानदार को? 10 into 20. वही करना है यहाँ पे. टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ x हैं और एक टॉय का कॉस्ट है 55 माइनस x. ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ टॉयज़ इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय. इतना पैसा लगेगा प्रोड्यूस करने के लिए x टॉयज़ को, एंड दैट इज़ गिवन एज 750. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. दिस गिवन 750 इज़ गिवन, सो 55x minus x into x is x square equals to 750. ओके, अब हमें x स्क्वायर प्लस में चाहिए, सब कुछ उस तरफ ले जाओ. सो व्हाट विल गेट? x स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा. 55x उधर ले जाएंगे तो माइनस 55x हो जाएगा. 750 ऑलरेडी उधर ही है, दैट साइड ऑफ इक्वल टू, सो वो प्लस 750 रहेगा. साइन का ध्यान रखो, ये दोनों हम उस तरफ लेके जा रहे हैं. So x square minus x square will become plus x square, minus 55x will become minus 55x, plus 55x will become minus 55x, और ये 750 वही है इसलिए plus 750 equals to 0. Okay, now we have a equals to 1, b equals to minus 55, c equals to 750. Product is a into c, that is 1 into 750 is 750. Sum is b, so that is minus 55. Now product is positive, sum is negative, मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तभी उनको मल्टीप्लाई करके हमें प्लस में आंसर मिलेगा, और उनको ऐड करेंगे तो वी गेट आंसर इन माइनस. देन अगेन विल जस्ट फाइंड 750 का प्राइम फैक्टर. सो यहाँ से हमें मिलेगा 5 से कर लेते हैं. 5 1 से 5, 5 5 देन 5. ओके, हमें चाहिए 55 ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं. 5 5 25 और 30, 25 प्लस 30 हो जाएगा 55. वी गॉट नंबर्स. सो माइनस 25 माइनस 30. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 750 प्लस 750, एंड व्हेन यू ऐड यू विल गेट माइनस 55. रीराइट करेंगे इसको. सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x, माइनस 55 को क्या लिखेंगे? माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. कॉमन ले लो x,
x माइनस 25, यहाँ पे हमें अंदर x माइनस 25 चाहिए, तो क्या कॉमन आएगा, x के साथ क्या माइनस 30 कॉमन आ जाएगा, बाकी आगे बंद करके लिख दो x minus 25. You can check also, minus 30 into x is minus 30x, minus 30 into minus 25 plus 750, दोनों negative. When we multiply, answer comes positive. So minus into minus plus 30 into 25, 750. ओके, सो ये जो ब्रैकेट में आता है फर्स्ट ब्रैकेट में, वही सेकंड ब्रैकेट में आएगा, तो तुम्हें बहुत इजी हो जाएगा क्या तुम्हें कॉमन लेना है. सो पहला वाला सही करो अच्छे से. सो x minus 25 कॉमन, x minus 30. Okay, now we have either x minus 25 0 or x minus 30 is 0. So x is 25 or x is 30. Okay, so number of toys are 25 or 30. सो दोनों आंसर पॉसिबल है. अगर नंबर ऑफ टॉयज 25 है तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय 55 माइनस 25 हो जाएगा, दैट इज़ 30 रुपीज़. ओके, अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 हैं देन कॉस्ट ऑफ वन टॉय 25 रुपीज़ हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. ओके, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27. सो लेट नंबर्स बी x. अब उनका सम दिया हुआ है 27. सो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस x, बिकॉज देयर सम इज 27. सो इफ वन नंबर इज x तो दूसरा क्या होगा, बचा हुआ 27 माइनस x. ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इज गिवन एज 182. सो इजी क्वेश्चन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू 182. 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज 182. अगेन x के स्क्वायर की कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए दोनों को उस तरफ ले जाओ. सो जब x माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 27x उधर जाके माइनस 27x हो जाएगा, 182 यहीं पर है तो अपने साइन के साथ ही रहेगा, इक्वल्स टू. अब यहाँ से सब कुछ उधर चला गया, यहाँ क्या बचा, 0, इसलिए इक्वल टू 0. नाउ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 27 एंड c इक्वल्स टू 182. Product is a into c, 1 into 182, that is 182. Sum कितना है, minus 27. Sum is b, therefore minus 27. ओके, अब दो नंबर फाइंड करेंगे जिसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, तो अगेन बोथ नंबर्स आर नेगेटिव. ओके, 182 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे. 182 2 9 2 1 ओके, 91 याद रखो 7 के टेबल से जाता है. ओके, तो 7 1 7, 7 3 21, क्योंकि वो 13 के 7 के बाद वो सीधा 13 के टेबल में आता है, तो याद रखो 7 के 91 7 के टेबल से जाता है. नाउ 7 2 14, 14 एंड 13 विल गिव यू 27. सो यहाँ से मिल गया हमें आंसर 14 इंटू 13. 14 इंटू 13 बोथ नेगेटिव, सो माइनस 14 माइनस 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 182 एंड व्हेन वी ऐड वी गेट माइनस 27. सो नाउ रीराइट दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 14. अब यहाँ पे हमें x माइनस 14 चाहिए, तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, माइनस 13 कॉमन आएगा. ठीक है, क्योंकि अंदर हमें x चाहिए, अंदर बचा x माइनस 14, यही सेम आएगा उधर. ओके, अब तुम्हें चेक करना है तो चेक कर लो. माइनस 13 इंटू एक्स इज माइनस 13x, माइनस 13 इंटू माइनस 14, माइनस माइनस प्लस 13 इंटू 14, 182. ऑलरेडी वी नो दैट इज़ 182. ओके, सो ईजी हो जाता है. सो जब कॉमन निकालते हैं सो प्रॉपरली निकालो, यही वाली ब्रैकेट इधर आएगी, तो यहाँ से तुम्हें ईजी हो जाएगा कॉमन क्या रहेगा इसमें से. तो यहाँ मुझे पता चल गया माइनस 13 कॉमन रहेगा, तभी अंदर x बचेगा, है ना. सो x माइनस 14 डायरेक्ट लिख दो, तुम्हें चेक करना है तो चेक करके देख लो एक बार. नाउ x माइनस 14 कॉमन आएगा, x माइनस 14 निकाला तो अंदर क्या बचा, x माइनस 13. सो वी हैव x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0. सो x इज 14 और x इज 13. ओके, numbers be 14. If number is 14 then other number is 13. If first number is 13 then other number is 14. The next one,
फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ वो स्क्वायर इज 365. सो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, एक के बाद एक आने वाले. अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1. सो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x and x plus 1. Now condition given is sum of their square. So x square plus x plus 1 whole square is equal to 180, not 365. ओके, सॉल्व कर लेते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो. a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज 2x प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 इक्वल्स टू 365. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. इसको 365 को इस तरफ ले आओ, माइनस 365, साइन का ध्यान रखो. 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 माइनस 365 इज, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, वी सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर साइन, इसलिए साइन पहले ही लिख दो ताकि तुम मिस्टेक ना करो. 365 माइनस 1 इज 364. और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर सारे नंबर कट रहे हैं किसी नंबर से, सारे टर्म्स, ओके, सो अगर सारे टर्म्स में नंबर कट रहे हैं तो काट दो. ना ये 2 और 364 भी 2 के टेबल में जाएगा. ओके, तो हम सबको 2 से कट कर देंगे. 2 1 ज़ा, बट कंडीशन इज तुम्हें सभी टर्म्स में कट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये दोनों में कट हो गया इसमें नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं कर सकते हैं. अगर सभी टर्म से कट हो रहा है तो ही कट कर सकते हैं. सो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4. ओके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज 0. ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न मैं बताती हूँ. अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं इन सब में से, बिकॉज इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है. ओके, तो अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, उसमें से 2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, 2 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, इसमें से 2 बाहर निकाला, ये माइनस 182 बचेगा. ठीक है, इक्वल्स टू 0. करेक्ट. 2 इंटू दिस फुल एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0. अब इस 2 को हम उस तरफ ले जा सकते हैं, इक्वल टू के उस तरफ, बिकॉज दिस इज 2 इंटू समथिंग. क्यों ले जा सकते हैं उसका रीज़न मैं तुम्हें यहाँ बता देती हूँ. सपोज 2 इंटू 4 ऐसा कुछ मैं एक नंबर लेती हूँ. 2 इंटू 4 इज़ 8. ना अगर मैं ये 2 को उस तरफ ले जा रही हूँ तो मुझे क्या करना है, 2 को उधर ले जाके डिवाइड करना है. सो 4 इज़ 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 4. 4 इक्वल्स टू 4. सो अगर हमारे पास 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या एक नंबर और दूसरा फुल एक्सप्रेशन ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज़ इन ब्रैकेट मीन्स इट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ 2. तो इस 2 को जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो 0 से हमें डिवाइड करना है. सो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज़ 0. तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सभी टर्म्स में से कट करना है उस नंबर को. जैसे 2 से मैं कट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ से भी 2 1 ज़ा 2, इसमें से भी 2 को कट किया, इधर से भी 2 को कट किया. तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि 2 को कट कर रहे हो, एक नहीं जा रहा है तो उसको छोड़ दिया, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा. वाई, बिकॉज दिस इज़ द रीज़न. You have to take common and then bring it that side. 0 upon that number will become 0. So वो हट गया. So basically I am making the equation easy. If it is going, cut it. A equals to 1, B equals to 1, C equals to minus 182. Now product is minus 182. Sum is 1. Sum is 1. Product is A into C minus 182. Sum is 1. तो उसको रीराइट कर लेंगे. एक्स स्क्वायर अब पहले हम फाइंड करेंगे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके हमें माइनस 182 मिल रहा है और ऐड करके 1 मिल रहा है. नाउ प्रोडक्ट इज नेगेटिव एंड सम इज पॉजिटिव मीन्स वन नंबर इज नेगेटिव. प्रोडक्ट इज नेगेटिव मीन्स वन नंबर इज नेगेटिव, अदर नंबर इज पॉजिटिव. सम इज पॉजिटिव मीन्स बिगर नंबर इज पॉजिटिव. तो हम देखें कि किन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 182 मिलता है और उनको माइनस करके 1 मिलता है. सो 2 9 1, देन अगेन 91 आ रहा है, 7 से ही जाएगा. ठीक है, याद रखो ना, कुछ चीज़ें याद रखो. 91 7 से ही जाता है. ओके, 2 7 2 ज़ा 14 एंड 13 हमें मिल गया. 14 माइनस 13 इज़ 1. सम इज़ पॉजिटिव, बड़े नंबर को पॉजिटिव रखो, छोटे नंबर को नेगेटिव रखो. सो माइनस 13 प्लस 14 इज़ 1 एंड माइनस 13 इंटू 14 विल गिव यू माइनस 182. सो दिस इज़ माइनस 13x
plus 14x minus 182 is 0. ओके, कॉमन निकालो पहले दो में से, x माइनस 13 आ जाएगा ना, यहाँ पे x चाहिए मीन्स 14 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में सेम आएगा x माइनस 13, यू कैन चेक ऑल्सो. सो फ्रॉम देयर यू विल गेट x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0. यहाँ से तुम्हारे पास दो ज़ीरोज़ आ जाएंगे. सो वी हैव x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0. सो विल गेट x एज माइनस 14 और x इज 13. माइनस 14 पॉसिबल नहीं है, सो x इज 13. सो नंबर्स आर 13 एंड 14. माइनस 14 बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव इंटीजर, सो माइनस 14 हम नहीं, इसको डिस्कार्ड कर देंगे. सो x इज 13 इज आंसर. सो टू नंबर्स आर x 13 एंड x प्लस 1. x is 13 and x plus 1 means 13 plus 1 14. Now next is the altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Okay, right angle triangle है. So that is what is given to you is the altitude is 7 centimeter less than its base. 7 centimeter less than its base. So base को x ले लेते हैं, base दिया हुआ नहीं है तो उसको हम x ले लेते हैं. एंड एल्टीट्यूड मतलब ये जो 90 डिग्री बना रहा है ना, ये एल्टीट्यूड हाइट इसकी. सो दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस. सो बेस माइनस 7. ओके, 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, बेस से कम, तो x माइनस 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर. ओके, तो ऐसे ही ले लेंगे. लेट बेस बी x सेंटीमीटर. Then we have altitude. Altitude हम लेंगे x minus 7 centimeter and hypotenuse is given 13 centimeter. Using Pythagoras theorem, we have altitude square plus base square is hypotenuse square. Okay, this square plus this square equals to this square using Pythagoras theorem. So we get x minus 7 square plus x square is 13 square. Pythagoras theorem, this square plus this square equals to this square. जो दो sides 90 डिग्री बना रही है उन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दो, that is equal to hypotenuse square. इसको ओपन करेंगे. a square middle term is negative minus 2 into a into b. So 2 into x into 7 is 14x plus b square 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज 13 स्क्वायर कितना होता है 169. देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 169 इस तरफ ले आओ, सब कुछ इस तरफ आना चाहिए, इक्वल्स टू 0. नाउ वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 14x. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है एंड वी देयरफॉर वी सबट्रैक्ट बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर माइनस. तो पहले ही साइन डाल दो, नहीं तो फिर यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे, माइनस तो कर देते हैं फिर यहाँ प्लस साइन डाल देते हैं. तो बड़ा नंबर नेगेटिव है तो पहले ही साइन फिक्स कर दो. अब दोनों को माइनस करो 120. अब अगेन देखो 2x स्क्वायर 14x एंड 120 तीनों 2 से जा रहे हैं ना, तीनों 2 के टेबल में आते हैं. तो क्या करना है, काट देना है 2 से. तो मैं तुम्हें कॉमन लेके एक बार बता देती हूँ. 2 कॉमन लिया तो 2x स्क्वायर 2 7 14, 2 इंटू 7 14, 2 बाहर लिया इसलिए यहाँ पे 7 बचा. 2 इंटू 60 इज़ 120. ओके, अब ये 2 नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज 0 बाई 2 इज़ 0. इसलिए मैं 2 से डायरेक्टली भी काट सकते हो. 2 1 2, 2 7 14, 2 60 120. ओके, और अदरवाइज यू कैन टेक 2 कॉमन एंड डू योर विश. सो ऑलवेज सिंप्लीफाई. इफ इट इज सिंप्लीफाइंग ऑलवेज सिंप्लीफाई. नाउ a इज़ 1, उससे तुम्हारी कैलकुलेशन कम हो जाती है, मेहनत कम लगती है. c इज़ माइनस 60. नाउ सम इज b दैट इज़ माइनस 7, प्रोडक्ट इज़ a इंटू c दैट इज़ माइनस 60. अब सम भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है. प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव है, इसका मतलब एक नंबर नेगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है. अब सम नेगेटिव है मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव है. फिर इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. किसके, 60 के. सो 2 इंटू 30
2 इंटू 15, हमें क्या चाहिए, हमें 7 चाहिए, डिफरेंस हमें 7 चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, डिफरेंस हमें 7 चाहिए और प्रोडक्ट हमें 60 चाहिए। ओके 3 5 सब देखते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, 12 एंड 5 मिल गया। हाँ, और हमें नेगेटिव है ना, सम इज़ नेगेटिव, सो बड़ा नंबर हम नेगेटिव लेते हैं, छोटा नंबर हम पॉजिटिव लेते हैं। करेक्ट। सो -12 + 5 इज़ -7, -12 इंटू 5 इज़ -60। रीराइट कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, -2 - x² एंड देन -12x + 5x -60 = 0। सिर्फ -7x को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है, -12x + 5x। ठीक है, आंसर -7 ही आएगा, तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को, जस्ट दूसरे वे में लिख रहे हैं। कॉमन निकालो, x - 12, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 5, क्योंकि यहाँ पे हमें x चाहिए, x के साथ क्या 5 वो बाहर आ जाएगा, अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ये जो ब्रैकेट में वही लिख दो, तुमको चाहिए तो चेक कर लो। 5 इंटू x, 5 इंटू -12 इज़ -60। ओके, अब ये कॉमन आ जाएगा, x - 12, अंदर क्या बचा, x + 5। सो आइदर x - 12 इज़ 0 और x + 5 इज़ 0। ओके, सो x इज़ 12 और x इज़ -5। अब हमारा क्या था, x बेस था, अब बेस माइनस में तो नहीं हो सकता, तो ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। सो व्हाट इज़ द आंसर, बेस जो अदर टू साइड्स फाइंड करने के लिए बोला है ना, सो बेस की लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर, माइनस में नहीं हो सकता इसलिए इसको डिस्कार्ड किया है, और एल्टीट्यूड होगा x - 7 मतलब 12 - 7 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। सो वी गॉट बोथ बेस एंड एल्टीट्यूड। Okay, last question. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the cost of production on that day was ₹90, find the number of article produced and the cost of each article. So same question है जैसे हमने किया था example 1, question number 2 में, example 1 का second question, same type का question है। Let find number of article produced and cost of each article. So let number of articles produced on that day, एक ही दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, x, और it was observed on particular day that cost of production of each article was 3 more than cost of production of one article, each article means one article, is how much, ₹3 more than, जैसे लिखा है वैसे करते जाओ, 3 more means plus, more than twice the article, 2 times of article कितने, x, so 3 + 2x, 3 more than twice article. Okay, now and if the total cost of production on that day is ₹90. now total cost of production कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल x है और एक आर्टिकल का कॉस्ट है 3 + 2x कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो x आर्टिकल का कितना होगा, x इंटू 3 + 2x। सिंपल है, अगर तुम शॉप में जाते हो कुछ खरीदने और एक सपोज एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹5, एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹5 और तुम खरीद रहे हो 10 पेंसिल्स, तो कितना पैसा दोगे दुकानदार को, 5 × 10 ₹50 दोगे। यही करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्टिकल है x और उसका ईच आर्टिकल का कॉस्ट है 3 + 2x, देन इफ़ यू वांट टू फाइंड टोटल कॉस्ट व्हाट यू विल डू, मल्टीप्लाई दीज टू। ओके, सो यही करना है, यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x × 3 + 2x = 90, ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, टोटल उन्होंने ₹90 खर्चा किया x आर्टिकल बनाने के लिए। सो x इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल विल गिव यू ₹90। मल्टीप्लाई करो, x × 3 3x, x × 2x 2x² = 90,
90 को इस तरफ लो और इसको रीअरेंज कर लो. हमेशा स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट लिखना है, देन x वाली टर्म, देन कांस्टेंट, और सब कुछ इक्वल टू किस तरफ होना चाहिए, एंड इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ यहाँ पे देखो 2, 3 एंड 90 ये अभी कट नहीं होते हैं, तो इसको नहीं काटना है, ये लोएस्ट फॉर्म में ही है. ठीक है, इसको नहीं काटना है. जैसे 3 और 90 जा रहा है, चलो इसको काट दिया, ऐसा नहीं करना है. तीनों जाएगा तभी काटना है. a is 2, b is 3, c is minus 90. Now sum is b, that is 3. Product is 2 into minus 90, a into c, so that is minus 180. प्रोडक्ट minus 180 है, सम 3 है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है. मतलब क्या, एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है और बड़ा नंबर पॉजिटिव है, तभी सम पॉजिटिव है. ओके, सो जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है. नाउ 180 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 180, 2 इंटू 90, 2 इंटू 45, हमें 3 चाहिए ना. देन ये जाएगा 3 से, 3 1 से 3 5 से, देख लेते हैं. 2 2 4, 4 3 12, 12 एंड 15 वी गॉट. 12 एंड 15 सम पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव रखेंगे, छोटा नंबर नेगेटिव रखेंगे. सो प्लस 15 माइनस 12, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट माइनस 180, एंड व्हेन वी ऐड वी गेट प्लस 3. ओके, सो ध्यान रखो जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है. सम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर सम पॉजिटिव है बड़े नंबर को पॉजिटिव लो, अगर सम नेगेटिव है तो बड़े नंबर को नेगेटिव लो. रीराइट इट. 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0. सो मिडल टर्म 3x को हमने स्प्लिट करके लिख दिया, 15x माइनस 12x. सो आंसर इनको जब सॉल्व करेंगे तो 3x ही आएगा. सो वी आर नॉट चेंजिंग क्वेश्चन, वी आर जस्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 2 और 15 तो कॉमन नहीं ले सकते. 2 एंड 15 आर दिस वन को प्राइम नंबर्स. सो यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा सिर्फ x. अंदर क्या बचा, 2x, और यहाँ क्या बचा, 15. करेक्ट. अब यहाँ हमें अंदर क्या चाहिए, 2x चाहिए. तो यहाँ क्या कॉमन आएगा इन दोनों में, 6. वाई 6? बिकॉज 6 इंटू 2 होता है 12. 6 इंटू 2 इज़ 12. अंदर हमें 2x चाहिए. ओके, ईजी होता है करने के लिए. सो वी नीड 2x इनसाइड. तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, वाई आई टुक माइनस साइन आउटसाइड बिकॉज ये प्लस है, तो माइनस भी बाहर आएगा और वो नंबर भी बाहर आएगा जिसको मल्टीप्लाई करके हमें 2x मिले, 2 मिले. सो 6 2 ज़ 12. ओके, सो 6 विल कम कॉमन, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0. जो अंदर ब्रैकेट के अंदर सेम ही आएगा, 2x प्लस 15. बस हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना है. वो ढूंढने के लिए तुम इसका फर्स्ट टर्म देखो, 2x है, यहाँ पे क्या है माइनस 12x, हमें प्लस 2x चाहिए, तो माइनस साइन बाहर आएगा. और देखना है कि वॉट मल्टीप्लाई बाई 2 विल गिव यू 12. सो 6 विल कम आउट. ओके, अंदर तुम आंख बंद करके ये ब्रैकेट है वही लिखना है, 2x प्लस 15. तुमको चाहिए तो चेक कर लो. 6 माइनस 6 इंटू 2 इज़ माइनस 12, माइनस 6 इंटू प्लस 15 इज़ माइनस 90. ओके, नाउ 2x प्लस 15 आएगा कॉमन, आएगा x माइनस 6. So 2x plus 15 is 0. So from there we'll get x as minus 15 by 2, or x minus 6 is 0. From there we'll get x is equal to 6. Now number of articles minus 15 by 2 तो नहीं हो सकते, तो इसको छोड़ दो. Number of articles are 6. This is possible. So answer is number of articles are 6. So number of articles are 6, and cost of one article is क्या था हमारे पास, 3 plus 2x. So 3 plus 2x. So that is 3 plus 2 into 6. So 12 plus 3, 15. So cost of one article is rupees 15. Number of article produced on that day, 6. Okay, so this is the answer. Thanks for watching. Please like and subscribe.